the numericals. Last time we discussed numericals, but they are basic one. And today we discuss different ways to approach the numerical and to solve the different numericals. We know that last time we have studied concentration. We discussed about percentage, mass percentage, volume percentage, and we can say mass by mass, volume by volume, and we have mass by volume. Now today we discuss the numericals and solve number of numericals there. So I'm sharing my screen. Make sure that page is visible to you, all of you. And first of all, if any case you do not understand, just text me, because numericals are not simple. Few are simple, but there is some sort of, we can say, twist in the numericals. So I am giving permission to everyone, right? I have given permission to everyone. Yes. Those who are joining, I am giving permission to everyone. ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप permit कर सकते हो, but आप करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर आते हो फिर छोड़ देते हो, so that will be a very hectic for me. So students, if you just go in the Google classes and you find that you have numericals being solved by me, handwritten by me, and I am giving there 5 examples. So today I discuss those 5 examples which are already present in Google classes. So there is no need to write the things, just understand. What you just write, make notes, and that is enough for you. Excuse me, sir. Yes, I am starting. Sir, whatever you are sending, I am not getting on my Google Classroom account. Why not? Everyone maybe अभी send किया, send just अभी किया send. जैसे आपकी क्लास के टाइम हुए थे वैसे मैंने आपको सेंड किया। तो अभी सर आपने पहले भी एक क्वेश्चन भेजा था, वो भी मुझे नहीं आया था। Quizlet is for everyone, and if you are in the class, that may be for you also. So आप मुझे अपना टेक्स्ट कीजिएगा and कुछ प्रॉब्लम उसमें देख लूंगा, ठीक है? Maybe you are not added there. आप add हो? Yes sir. Then I will find out. Okay. Okay sir, thank you. Okay. So today students we are discussing numericals. तो अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे न्यूमेरिकल की जो सबसे सिंपल है, जो आपने फर्स्ट टाइम भी किया था, और उससे पहले मैं बात करूंगा कुछ टॉपिक्स की। It is not visible. 1 minute. Students, light is okay on the page or not? It seems to be something like different way. क्या पेज दिख रहा भाई सबको? अच्छे दिख रहा नहीं दिख रहा? I think नहीं दिख रहा. No sir. Now it's clear. Clear. Yes, it's clear now. Yes. Yes I sir. think it's clear. Okay. Yes sir. Yes sir. So very much thanks. Now students, sometime if you see that blurring is there, just wait for 1 second. It will be occupied. अब हम बात करते हैं भाई आज के टॉपिक की। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि टॉपिक हमारे पास क्या भाई, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब सबसे पहले हमें क्या निकालनी, परसेंटेज। बचपन से निकालते आ रहे हो, तो परसेंटेज क्या होता है भाई, आपको पता है परसेंटेज किसी भी निकालते हैं तो हम लेते हैं भाई हमारे पास गिवन नंबर क्या है, टोटल नंबर कितने में ऐसे लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई करते हैं 100, ठीक है? यही होता है, और हम इसी फॉर्मूले के ऊपर सभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सपोज आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है, मैंने केमिस्ट्री को पेपर लिया 20 मार्क्स का, आपके मार्क्स आए 10, ठीक है? आपने परसेंटेज निकाला, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इट विल बी इक्वल टू 50%। और आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास 10 मार्क्स आउट ऑफ 20 इट इज 50%, ठीक है? तो आप इजिली निकालते हो। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। जब बात यहाँ पे करते हैं
तो भी अगर हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये देखना है कि कितना कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट है। व्हाट इज कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन किसका बना होता है भाई, मैं SOLN लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन किसका बना होता है भाई, सॉल्यूशन बना होता है दो कंपोनेंट का, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। क्विजलेट दिया था, उसमें बताया था आपको मैंने कि सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है और उसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट जो डिसॉल्विंग सॉल्यूट डिसॉल्विंग कैपेसिटी रखता है और उसकी क्वांटिटी क्या होती है भाई, लार्ज होती है। तो ये आपको बताया था मैंने। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं सॉल्यूशन बनता है। हमें ये देखना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसका परसेंट निकालना है। ठीक है, क्या वो परसेंट कम है, ज्यादा है, तो ये हम देखेंगे कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सिलेक्ट से की है तो ये आपका सपोज x है, तो आप निकाल सकते हो। अब तीन तरह से निकालते भी। सबसे पहले मास बाय मास परसेंट, एक, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सो वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग थ्री फार्मूलाज। मास बाय मास परसेंट में क्या होगा भाई, सिंपल हमारे पास है, हमने लिया यहाँ पे मास किसका भाई, तो ये लेंगे हम सॉल्यूट का, अपॉन यहाँ पे मास किसका भाई, तो सॉल्यूशन का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहला इजी भाई हमारे पास। मास बाय वॉल्यूम का मतलब ऊपर हमने क्या लेना, सॉल्यूट ही रहना, याद रखना। तो मास किसका, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाई क्या है भाई 100 हमारे पास। तीसरे केस में वॉल्यूम, दोनों में वॉल्यूम, ऊपर किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे भाई 100 से। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं। अब देखो तीन फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना, ऊपर लिया अमाउंट इसका सॉल्यूट का, नीचे लिया सॉल्यूशन का अमाउंट, मल्टीप्लाई किया 100 से। चाहे अमाउंट हमारे पास वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पहले से। मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा, सिंपल बताऊंगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 1, उसमें क्या दिया भाई वो बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास सॉल्यूट है, मैं लिखता हूं सॉल्यूट हमारे पास है, और सॉल्यूट क्या यहाँ पे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम दिया भाई, क्लियर। इसको डिसॉल्व किया है वाटर में, और वाटर क्या यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, H2O उसको फॉर्मूला होता है, और ये दिया 80 ग्राम। देखो भाई जो कम है वो सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम है वो सॉल्वेंट। हमें बोला है परसेंटेज निकालो मास बाय मास। ये फर्स्ट टाइप है, दिस इज फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। तो ये लिखो टाइप 1 में लिखो इसको। मैं आपको टोटल 5 टाइप करा रहा हूँ, 5 टाइप न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ आज। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप है, हालांकि 3 टाइप के फॉर्मूले, बट आई एम गोइंग फॉर 5 टाइप्स। ओके, सो व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तब बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। 20 सॉल्यूट और 80 सॉल्वेंट, दोनों बन गए सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो भाई यहाँ पे क्या करना, ऐड करना दोनों को। क्यों किया, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम अगर इसको डिवाइड करें, ये हो गया 20 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 20%। ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई, आंसर हमारे पास 20% निकल गया। इसमें कोई डाउट भाई, एनीवन, एनी डाउट? यस गर्ल्स? No, sir. No, ओके, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज अ वेरी सिंपल No, क्वेश्चन। sir. नहीं सिंपल नहीं क्या, नो क्यों बोल रहे हो, नॉट सिंपल, नो सर, नो सर है सिंपल। ये भाई आशीष को क्या बोल रही है, सिंपल नहीं है मेरे भाई, सिंपल है भाई ये। ठीक है, नहीं है तो अभी बताते हैं, टेंशन मत लो, नहीं तो आपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते जाओ, खुद सीखोगे यहाँ पे।
बस ये याद रखना कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल करना आपने टोटल। ओके भाई, थैंक यू जसवी, फॉर नो डाउट। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टाइप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टाइप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पहले ये देखते हैं, सभी ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 अभी भी सिंपल है, इसके बाद टफ आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अप्लाई करूंगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पहली टाइप मास बाई मास परसेंटेज। यस, वाइस फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट। बुक्स कहाँ है? कहाँ पे बुक्स? वहीं पे हैं, बुक्स रखी होती कहाँ पे? ठीक है भाई, तो पहली टाइप हो गई भाई टाइप 1 मास बाई मास परसेंटेज, टाइप 2 मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे भी इस पे क्वेश्चन हमारे पास है भाई। देखो अब ध्यान से, हमें ये बोला है कि आपने कैलकुलेट करना है, व्हाट टू कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये बोला है। डाटा क्या दिया भाई हमारे पास, जो सल्यूट है वो हमारे पास 20 ग्राम है, नॉट 20, 10 रख देते हैं, 10 ग्राम है। ठीक है भाई, और यहाँ पे सोल्यूशन जो हमारे पास है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना भाई हमारे पास, 250। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट क्लियर आई थिंक, आप देखो थोड़ा सा। तो पहले सोल्यूट का जो हमारे पास मास है वो 10 ग्राम है, और सोल्यूशन कितनी भाई यहाँ पे 250। 250 क्या भाई, ग्राम नहीं, एमएल। एमएल मतलब वॉल्यूम। आपने क्या निकाला, परसेंटेज, कौन सी भाई, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर परसेंटेज निकालो मास बाई वॉल्यूम, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, तो सोल्यूट 10, सोल्यूशन 250 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे ध्यान देना, ये वॉल्यूम किसका दिया, सोल्यूशन का दिया है। ये वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया 250, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, 0 0 कैंसिल, क्लियर। जो कि भाई 100 अपॉन 25 एंड दिस इज इक्वल टू 4%। तो 4% हमारे पास आएगा सोल्यूशन का भाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड टाइप 2। क्लियर गर्ल्स? Question number 2, type 2. Maybe it is not clear because writing is somehow scribbled over and over again. So, but I think you listen it carefully and you got this. Yes, any doubt? No, sir. No, sir. Thank you. ये पढ़ा जा रहा है थोड़ा सा, इसको मैं No, साफ लिखता हूँ। sir. नहीं पढ़ा जा रहा? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों की नो भी होती है, यस होती है, मुझे समझ नहीं आती, तुम यस बोलना चाहते हो, नो बोलना चाहते हो, डिवल तो नहीं बोलते हो। चलो भी आगे करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सो थर्ड क्वेश्चन के लिए आते हैं भाई हमारे पास, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब बस ध्यान से सुना, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, और इसमें क्या है। अब आपको समझ आया कि थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूँ और मुझे क्या बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो भाई ध्यान से, बोलता है 10 ग्राम, बोलता है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। कितना दिया भाई, इसको डिसॉल्व क्या है, इसको डिसॉल्व किया कितने भाई, 90 ग्राम वाटर में। तो पहले बताओ भाई यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है जो कम है, मतलब ये आपका सोल्यूट है। ये क्या सोल्यूशन या सॉल्वेंट, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, सोल्यूशन ही अभी। ये बात क्लियर भाई? तो बोलता है 10 ग्राम ऑफ NaCl या कोई भी सॉल्ट है दैट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। So you have 10 gram is solute and 90 gram is water, that is solvent, not solution. मुझे कोई बताएगा सोल्यूशन का टोटल मास कितना होगा, तो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 grams. सोल्यूशन का मास यहाँ पे 100 है। अगर 100 आपको बोला ग्राम। जाए सोल्यूशन इज इक्वल टू, सबको पता सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस Solution. सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अच्छा भाई सोल्यूट कितना 10, सॉल्वेंट कितना है 90, टोटल इज इक्वल टू, तो बताओ अभी सोल्यूशन का मास क्या हो गया, 100 हो गया। बट अब यहाँ पे बोलता है कि अब इसने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे 100 में खुद बताया। अभी तक क्वेश्चन क्या, पहले मैं बताता हूँ। 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, इतना बताया। और फिर बोलता है कि हमारे पास डेंसिटी दी है, तो कितनी दी भाई यहाँ पे, डेंसिटी कितनी दी हमारे पास, डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, इसकी भाई ऑफ solution that is given by as 1.09 gram per ml।
क्या दिया भाई, डी। तो भाई डी क्या होता है, कोई पूछेगा डी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है भाई यहाँ पे, एनीवन रिमेंबर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, याद है भाई, सबको याद है? यस सर। और अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालूं तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा भाई, यहाँ से वॉल्यूम चला गया डी की जगह पे, तो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से मास निकालूं तो क्या होगा बताओ भाई, मास इज इक्वल टू मास निकालने, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी इंटू बी। तो भाई यहाँ पे 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको। अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, पहले देखो इसने क्या बोला भाई, इसने खाली क्या बोला, ये फॉर्मूले नहीं बोले इसने, इसने बोला डेंसिटी दी सोल्यूशन कितनी भाई, 1.09 ग्राम। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, क्या निकालो, मास बाई मास। क्या नहीं हो रहा भाई, क्लियर नहीं हो रहा? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। तो देखो भाई पहले मुझे बताओ यहाँ पे मास बाई मास है या मास बाई वॉल्यूम दिया, यहाँ पे क्या दिया है? मास देखो दोनों जगह पे मास ही है, सोल्यूशन का मास है 100 ग्राम और सल्यूट का मास है 10 ग्राम। तो मैं मास बाई वॉल्यूम निकालूं तो पहले हमें यहाँ पे, ठीक है मास तो हमारे पास है, अगर हम परसेंटेज निकालें मास बाई वॉल्यूम तो मतलब ये हो गया कि मास ऑफ सल्यूट अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका भाई, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई क्या भाई 100, यही आएगा। व्हाट इज मास ऑफ सल्यूट भाई, कितना भाई हमारे पास, तो आप देख सकते हो 10 ग्राम है। 10। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो दिया नहीं कहीं, क्या वॉल्यूम कहीं दिया उस सॉल्यूशन का, नहीं दिया। हमारे पास क्या दिया, हमारे पास दिया मास सॉल्यूशन को, कितना है 100, वॉल्यूम नहीं दिया। हमें वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालना है, डेंसिटी दी है। तो भाई देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, मास हमारे पास कितना है 100 है हमारे पास, ठीक है भाई, एस का मास 100 ग्राम है। डेंसिटी कितनी भाई हमारे पास 1.09 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल, पीछे बचेगा क्या भाई, ml बचेगा, ऊपर जाएगा ये 100 डिवाइड बाई 1.09, ये डिवाइड करके आता भाई कितना 91.74, क्या आएगा भाई यूनिट ml। तो वॉल्यूम कितना आया भाई यहाँ पे ml 91.74 ml। क्या ये पॉइंट क्लियर हो भाई यहाँ पे? यस गर्ल्स सर। देखो हमारे पास मास दिया है, हमें ये बोला है, हमें बोला है कि आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो वॉल्यूम तो कहीं था नहीं। अब क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पे डी दिया हुआ है, तो अगर जब डी दिया है, 1 मिनट दीक्षा गुप्ता, आई विल मेक इट फॉर यू। तो पहले मुझे इसको थोड़ा समझाने दो। तो भाई देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, आई जस्ट शो यू क्वेश्चन कहाँ पे ये, उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने कैसे निकाला, ये आपके सामने पेज है और इस पे मैंने कर दिया है यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको फोल्ड करके बता देता हूँ सो दैट आपके साथ सारा डाटा सामने हो। तो ये भाई क्वेश्चन मार्क्स क्या बोला भाई, 10 ग्राम NaCl dissolved in 90 ग्राम वाटर, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कितनी दी भाई डेंसिटी हमारे पास 1.09 ग्राम, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें मास दिया भाई NaCl का 10, सोल्यूट है ये, सॉल्वेंट हमारे पास है 90 ग्राम है हमारे पास, सॉल्यूशन का टोटल भाई 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 हो गया। डेंसिटी दी है यहाँ पे कितनी भाई 1.09, और किसकी भाई सॉल्यूशन, रिमेंबर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है मास बाय वॉल्यूम, व्हाट आई नीड मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई यहाँ पे, अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालूं, ये आएगा मास बाय डेंसिटी। मास किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का मास कितना भाई 100, डेंसिटी कितनी है 1.09, तो वही वॉल्यूम कितना है भाई, यहाँ से वॉल्यूम आया हमारे पास 91.74 ml। अब निकालो फार्मूला, therefore mass by volume is equal to mass of solute 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने कैलकुलेट किया डेंसिटी से वो आया 91.74, मल्टीप्लाई बाय 100% का, तो ये आएगा 10.90। सो आई थिंक इट्स अ क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू। अगर यहाँ पे देखो भाई,
आपको कहाँ पे मिस हो रहा मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसने बोला है मास बाई वॉल्यूम। अगर आपको बोलो था मास बाई मास तो आप एकदम से करते। अगर यहाँ पे मास बाई मास तो आप क्या करते, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया पहले यहाँ पे बताता हूँ। तो ये आपने किया 91.74 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 10.90%। थोड़ा देखो यहीं पे देखो, अगर बोला होता इसने ये था हमारे पास क्या मास बाई वॉल्यूम, अगर बोलता है ये मास बाई मास, फिर आप सिंपल पता क्या करते हैं, यहाँ पे आप 10 ऊपर लिखते हैं। अच्छा भाई, सोल्यूशन का मास 100 था, आप 100 यहाँ पे लिखते, मल्टीप्लाई क्या होता 100, 100 100 कैंसिल इज इक्वल टू 10। ये समझ आया ये कैसे क्या, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, बट यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ग्राम और ml चाहिए भाई यहाँ पे। ठीक है, देखो फर्क दोनों में क्या है, पूछता क्या वो आपने जरूर देखना क्वेश्चन उसने पूछा क्या है। यस गर्ल्स, आप थोड़ा क्लियर हुआ। Yes, sir. तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देखो, जब आपके सामने ये स्क्रीन में आएगा, गूगल क्लासेस में आएगा, तो यू जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन अगेन। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर, बिकॉज पूछा क्या, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया उसने डेंसिटी वॉल्यूम कुछ निकालने बोला, तो बीच में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ा क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया था। उसने बोला था मास बाई वॉल्यूम निकालो, ना कि मास बाई मास निकालो। क्या क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट था? यस ट्विस्ट था। अब एक और ट्विस्ट डालते हैं, नाउ वन मोर ट्विस्ट। तो पहले ट्विस्ट से पहले मैं आपको थर्ड टाइप बताता हूँ, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था बट सेकंड में ही थर्ड टाइप। अब मैं आपको एक और टाइप बताता हूँ पहले क्वेश्चन की। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास। तो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई हमारे पास क्या है, सो व्हाट इज क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन हमारे पास ये बोलता है, देखो भाई क्या बोलता है क्वेश्चन हमारे पास, कहता है ये भाई थर्ड टाइप हमारे पास है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड टाइप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो क्लियर गर्ल्स, अब हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाला। देखो भाई हमारे पास वॉल्यूम ही चाहिए, दोनों क्या चाहिए, वॉल्यूम। अगर कुछ मास भी होगा वहां पे वॉल्यूम करेंगे, सपोज कहीं मास भी उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हमारे पास मास दिया है वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो हमें डेंसिटी चाहिए, ये भी याद रखना। व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद मास वी नीड वॉल्यूम, देन वी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद डेंसिटी आल्सो, हमें डेंसिटी भी होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको मास दिया है बट आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास डेंसिटी पता होनी चाहिए, अगर डेंसिटी नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हो, ये याद रखो। अब थर्ड टाइप मास बाई वॉल्यूम। तो भाई मास बाई वॉल्यूम को हम सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को निकालेंगे, क्या करते हैं भाई, व्हाट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे, 100. ठीक है, देखो वही है, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्वेंट, अमाउंट चाहे फिर वॉल्यूम हो चाहे फिर मास हो हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, आप अब इसको अभी निकालोगे क्योंकि सिंपल है। ये बोलता है भाई 200 ml हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है भाई, 200 ml क्या है, सोल्यूट है, उसको ऐड किया 500 ml सॉल्वेंट में, किसमें भाई, तो बताओ भाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, चलो बताओ क्या होगी। 200 ml सोल्यूट 200 upon क्या आएगा, 700 into 100. वेरी गुड, 200 प्लस 500 पूरा बताओ यहाँ पे, क्योंकि आपको भी समझ आया कि मैंने क्या किया है। ये हो गया भाई आपका 200 अपॉन 700 मल्टीप्लाई भाई कितना भाई 100, और 0 0 0 कैंसिल, बचा भाई कितना 200 डिवाइड बाई 7। ठीक है भाई, तो भाई 7 2 जा 14, ठीक है 14 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, 60 बचा भाई पीछे, 60 बचा तो कितना होगा भाई, ये हो गया 8 8 7 जा 56, तो बचा भाई हमारे पास आपका 0.5, तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, मतलब इट इज इक्वल टू 28.5 एग्जैक्ट तो मैंने कर दिया शायद। तो आप इसको देख सकते हो कि आया नहीं आया 25, कुछ पॉइंट में अगर डेसिमल में होगा तो उसको छोड़ देते हैं यहीं पे कर। तो क्या क्वेश्चन भाई यहाँ पे समझ आया। सो व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये पता चला यहाँ पे 500 प्लस 200 क्यों किया है, क्योंकि वो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं वो। अगर यहाँ पे बोला था कि सोल्यूशन का मास 500, फिर क्या करते बताओ, अगर यहाँ Sir, बोला 200 upon 500 into 100. अब समझ आया ना कि उसको क्यों करते हैं, वहां पे उसने लिखा है सॉल्वेंट ना कि सोल्यूशन लिखा है। अगर यहाँ पे सोल्यूशन 500 होती तो बताओ मुझे सॉल्वेंट कितना होता, 300 है ना। अगर यहाँ पे सोल्यूशन का मास
सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 होता तो सॉल्वेंट कितना होता, 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। ठीक है ना, तो आपने वही लगाना, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट पर सॉल्वेंट। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं बोलता, सपोज मैं कहता सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आपकी 500 है और आपका सोल्यूट यहाँ पे 200 है, तो बताओ अभी सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्वेंट कितना, तो भाई सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये इधर चला जाता 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। ठीक है भाई, ये भी आपको समझ आता ना, तो इस तरह से हो गया भाई, इसको मैं ज्यादा करने की कोशिश। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 टाइप, 5 टाइप इज अगेन अ ट्विस्ट टाइप। फिर उसमें आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको सिंपल नहीं किया मैंने, तो दैट इज टफ। थोड़ा सा आपके माइंड को मैं मोल्ड करना चाहता हूँ, तो भी पहले देखो 5 टाइप कहाँ पे करते हैं। सो फाइंडिंग अ स्पेस, तो भाई मैं आज इसी पेज पे आपको सब कुछ करा दूंगा। ठीक, इसको घुमा घुमा के यूज करेंगे, इसको पेज बचाएंगे थोड़ा सा, तो आप कोशिश करना प्लीज। तो देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 टाइप क्या कहता है भाई हमारे पास, पहले क्वेश्चन में देखो भाई क्या क्या गिवन है। ठीक है भाई, तो ये रहा क्वेश्चन आपका, बोलता है कि आपको निकालना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालना भाई आपको, सॉल्वेंट निकालना है। अब solvent. सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। अभी परसेंटेज दिया, क्या बात है, वो समझ आ रहा, अब क्या निकालना है। सॉल्यूट दिया हुआ है 68 ग्राम और परसेंटेज दिया यहाँ पे मास बाई मास में दिया है, क्या दिया भाई, परसेंटेज। तो बताओ भाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो अगर मैं फॉर्मूला बता दूं, तो मास बाई मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कितना भाई 100। अब बताओ भी मास बाई मास परसेंट कितना है, 25 है। मास ऑफ सॉल्यूट 68, सॉल्यूशन में सॉल्यूट 68, सॉल्वेंट पता नहीं, तो पता नहीं क्या होता भाई x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 68 प्लस x इज इक्वल टू, पीछे क्या बचा यहाँ पे 68 इंटू 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, 25 8 सा, हाँ भाई, तो ये बनेगा आपका, हाँ तो ये बनेगा आपका 1700 बनेगा आपका, 1700 प्लस 25 इंटू एक्स, 25x is equal to 6800. So what is 25x? 6800 minus 1700 is equal to, इसको माइनस क्या 5100 आया। एंड व्हाट इज x नाउ, x यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड, 51 अपॉन 25, दोनों को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो 25 पूजा 50, पीछे बचा भाई क्यों हमारे पास यहाँ पे क्या 100, तो 25 और यहाँ पे 0 एंड 4, ठीक है भाई, तो ये आएगा हमारे पास कितना भाई 204। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 204 ग्राम। चेक करें भाई, तो चेक कर देते हैं। तो भाई हमें परसेंटेज निकालनी है, ऊपर कितना भाई हमारे पास सॉल्यूट का मास 68, तो 68 प्लस 204 इंटू 100, ठीक है भाई, इसको हमने ऐड किया 68 डिवाइड बाई क्या भाई 600 आएगा, कितना आएगा ये, सॉरी हाँ ये आएगा कितना होगा भाई ये 8 6 and 1 7, 272 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक भाई, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 25%। हो गया भाई, चेक भी हो गया, चेक भी हो गया, यही था हमारे पास परसेंटेज, यही थी भाई। तो आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह से।
So all these 5 questions are there, and even you can get answers from the Google classes. 5 questions are there, very simple questions are there. 2 questions are typical one with a twist one. And you need to check the question number 5. Repeating, listen. क्वेश्चन नंबर 5 अब भी जाके करोगे, दोबारा रिपीट करोगे, उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीट करोगे, बाकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है. और पूरे 2 पेजेस जो है रिपीट करोगे. वहां पे दोनों पेज मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे समझाया वहां पे लिखे हुए हैं. उसमें थोड़ा सा अच्छा लिखा, अगर कहीं पे आपको मिस्टेक मिलती है कैलकुलेशन में तो यू कैन नोटिफाई मी. ठीक है, तो अगर कहीं डेसिमल में अगर कोई डाउट है, डेसिमल का कोई ना कोई डेसिमल कन्वर्ट ही करना पड़ता है. एंड एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन रेज योर हैंड्स व्हाटएवर. सो तो अभी कुछ है तो बताओ भाई. Prior to this is your solution of the last question, which is this. And again I have checked here, मैंने चेक भी किया, को चेक करके बताया आपको 25% कैसा है. तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम देखते हैं. So any question from the participant? No, Yes, sir. girls, you have. Okay, so welcome. So girls, I'm just switching towards your quiz. तो मैं अब एक क्विज पे जा रहा हूँ, जो आपको पता है मैंने आपको शेयर किया, तो मैं उसी पे जा रहा हूँ. एंड दैट इज इन गूगल क्लासेस. So I'm switching towards Google classes. So you just go there. Not you do not go need to go there. I'm going there. So भाई Google में जा रहे हैं. 9th में कहीं कर सकता हूँ यूज, 9th A 9th B की कहीं भी आ सकते हैं यूज. तो हमारे पास हम Google क्लासेस में आ चुके हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 9th B क्लास के अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्विज दिया है. दिस इज क्विजलेट फॉर टुडे दैट आई हैव गिवन. और हमने क्विजलेट में जो भी बताया यहाँ पे, दिस इज फ्लैश कार्ड. तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेंगी. एंड व्हाट यू फाइंड देयर कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है. 10 टर्म्स आपको डिफाइन की है. 10 टर्म्स आपकी आज डायरी में फिट होनी चाहिए. ओके, यू नीड टू रिकॉल ऑल द टर्म्स. पूरी 10 की 10 टर्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं. अगर ये डाटा आपका ये जो क्लास से खत्म हो जाती है, नो डाउट होने दो इसको, तो आप इसको खुद ही पढ़ेगा. जितने हम कोड कर सकते हैं यहाँ पे. सो वी हैव 4 और 5 मिनट्स लेफ्ट. तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे भी. तो दिस इज क्विजलेट. एंड द फर्स्ट वर्ड इज, देखो इसको कैसे यूज करते हैं आपको पता. पहले फ्लैश कार्ड्स आते हैं, फिर लर्न आता, फिर राइट आता, फिर स्पेल आता, फिर टेस्ट आता. आप सब कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि पहला टर्म हमारे पास अलाय है. तो आप देख सकते हो अलाय को कैसे डिफाइन किया है. सो दिस इज क्विजलेट. इट इज नॉट ओपनिंग हियर बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, तो मैं आपको नीचे से बता देता हूँ. तो भी पहला आपके पास अलाय है, ठीक है. उसके बाद ब्रास बोल रहा है. ब्रास भी अलाय है किसका, कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर 70%, जिंक 30%. ब्रॉन्ज एक अलाय है कॉपर और टिन का. टिन का Sir, I have सिंबल read this. SN. हाँ, तो एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कीजिएगा. पिंच ऑफ आयोडीन क्या होता है भाई, एंटीसेप्टिक होता है. वुंड्स पे लगाया जाता है, स्किन में कोई कट हो वहां पे लगाया जाता है. इसमें आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल होती है. कि देखो मास परसेंटेज बताया आज आपको मैंने. और ये नैनोमीटर, व्हाट इज नैनोमीटर बाय 10⁻⁹. तो ये जो सारे टर्म्स है आपके पास, अडल्ट्रेशन भी बताया आपको मैंने, बहुत सारे टर्म बताए हैं. और आपको इस फ्लैश कार्ड में यू विल आल्सो फाइंड द डायग्राम्स. सो इफ यू वेट फॉर अ व्हाइल you will also find the diagrams. You can learn here, write here, spell here, test here, whatever you want. So just go through at once. And you have short terms also here with examples. alloy की example brass और bronze होती है. pinch of iodine एक solution है, air एक solution है. और आपके बात करें मास परसेंटेज की, यहाँ पे नैनोमीटर, याद रखो नैनोमीटर क्या होती है, 10⁻⁹ नैनो. ठीक है. और अगर सेंटीमीटर में निकालें तो कितनी आएगी यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे सेंटीमीटर कितना आएगा यहाँ पे. अगर 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर. एनीवन? यस, इज देयर एनीवेयर? कोई भी यहाँ पे भाई पार्टिसिपेंट. नाउ आंसर मी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो अब मुझे बताइए भाई यहाँ पे कि क्या वैल्यू आएगी हमारे पास. यस पार्टिसिपेंट्स, एनी, अदिति, अरुषि, एकमदीप कौर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10⁻⁹ मीटर इन सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आएगा. दीक्षा, गुरबानी, गुरकिरत, अर्गुन, कोई बताए भी. कशिश, कविता,
एनीवन? बताओ भाई मुझे, आर यू लिसनिंग मी? जिनके नाम बता रहा हूँ, Sir, repeat the question. Suchika, Vartika. Vartika is also there. I expect answer from Vartika. I am unmuting her. Where she is? Yes, Vartika. चलो बताओ मुझे. Upasana, ये भाई Yashika Sharma is also there. She is responding very well to me. And you please answer me. I think they are silently sleeping. अगर तुम्हारी नींद खुली हो ना, मुझे आंसर दे देना. Yes, Ekamdeep. Sir, can you repeat the question? Question is that 10 raised power minus 9 meter is equal to how much centimeter? My question is 10 raised power minus 9 meter is equal to how much centimeter? मैथमेटिक्स है भाई, 9th क्लास में पढ़ते हो आप, कौन सा नाम चाहिए? यस, एनीवन? अभी तुम सारे यहाँ पे, मैं तुम्हारे सबके स्क्रीनशॉट करके तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा, क्या इनको ये नहीं आता? हाँ? Yes, Sir, I you want guess 10 raised to power minus 11. 11 कहाँ से हो गया? 11 कहाँ से बढ़ा दिया आपने? Yes, one candidate is right. And Ashish scored ने आंसर दिया, very good Ashish score जो भी है ये नाम इसका, and it is 10 raised power minus 7 सेंटीमीटर. 2 पावर कम होती है, याद रखो ये. और ये दोनों किस होते हैं? दे आर इक्वल टू 1 नैनोमीटर. ये याद रखो. अब नेक्स्ट एक और बता रहा हूँ आपको, उसको भी देख ले जाओ. अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे पिकोमीटर की. तो भाई 1 पिकोमीटर, याद रखो इसको, पिकोमीटर, पी वाला पिकोमीटर